Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we will discuss about Q factor of a resonator. So, in the current lecture, we will discuss about Q factor of a resonator. Now, Q factor of a resonator. We have already discussed about cavity resonator and also about rectangular cavity resonator. So, what is Q factor of a resonator? This thing we will discuss in our current lecture of microwave electronics. It is a measure of losses and frequency selectivity of a resonator. So, actual में Q factor क्या है? Q factor measure the losses and frequency selectivity of a resonator. So reजोनेटर का जो लॉसेस है उसको मेजर करेगा एंड इसकी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा. So Q equal to omega R into energy stored in a cavity resonator divided by average energy loss. So per cycle कितना एवरेज एनर्जी लॉस है एंड कैविटी रेजोनेटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसका जो रेशियो है दैट इज नोन एज क्यू फैक्टर. Here omega r is angular resonance frequency of a resonator. So कैविटी रेजोनेटर की जो एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहां पर ओमेगा आर बोला है. सो ओमेगा आर इज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. The stored energy, that is U stored in a resonator, is obtained by integrating energy density over the volume of the resonator. So, हमको जो रेजोनेटर दे रखा है उसका अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन लें और वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपको किसका लेना है एनर्जी डेंसिटी का. सो बाय इंटीग्रेटिंग द एनर्जी डेंसिटी ओवर द वॉल्यूम ऑफ द रेजोनेटर we can obtain the energy stored in a resonator. So जो हमको रेजोनेटर दे रखा है उसका एनर्जी स्टोर निकालना है. Then we will take the volume integration over the energy density of the resonator. So U stored is equal to half volume integration E square dV. So this will be the energy stored in a resonator. Or this will be equal to half mu volume integration h square dv. The energy loss is obtained by integrating the energy density over the surface of resonator. So अगर हमको एनर्जी स्टोर निकालनी थी then we integrate the energy density over the volume of resonator. और अगर आपको एनर्जी लॉस निकालना है then we integrate the energy density over the surface of resonator. So अगर U loss निकालना है then we will integrate the energy density over the surface of a given resonator. मीन्स हमको surface integration निकालना है. So U loss equal to half RS surface integration HT square ds. So this is the energy lost in the resonator. Here RS is surface resistance of resonator wall. तो जो हमारे पास में resonator है, it may be rectangular resonator और circular resonator. So rectangular resonator भी हो सकता है, cubical resonator भी हो सकता है, या circular resonator भी हो सकता है. पर resonator wall का जो surface resistance है उसको हमने RS बोला है. So U lost equal to half RS surface integration determinant of HT square ds. But Q factor of a resonator is equal to omega R
into energy stored in a cavity resonator divided by average energy loss, and average energy loss हमको ये मिल गया, and energy stored हमने निकाला है U stored इक्वल टू हाफ म्यू वॉल्यूम इंटीग्रेशन एच स्क्वायर dV। तो हम इस फॉर्मूले में U stored एंड एवरेज एनर्जी लॉस दोनों की वैल्यू रख देते हैं। सो Q फैक्टर क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू ओमेगा आर इंटू हाफ म्यू वॉल्यूम इंटीग्रेशन एच स्क्वायर dV डिवाइडेड बाय हाफ आर एस surface integration ht a square ds। so this will be our q factor। अब यहां पर हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, सो q क्या जाएगा, q इक्वल टू ओमेगा आर म्यू वॉल्यूम इंटीग्रेशन एच स्क्वायर dv डिवाइडेड बाय आर एस सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी स्क्वायर ds। सो दिस विल बी आवर q factor। Since the peak value of the magnetic field intensity is related to its tangential and normal component and it is given by, so अगर हम magnetic field की peak value लें, so the peak value of magnetic field intensity is actually related to tangential component of magnetic field and normal component of magnetic field, और ये relation क्या होगा, magnitude h square equal to magnitude of ht square plus magnitude of hn square। This is the tangential component of magnetic field intensity h and this is the normal component of magnetic field intensity h। So h का जो tangential component है वो हमारा ht है and normal component hn है। So the magnitude of h square is equal to magnitude of ht square plus magnitude of hn square। एट द रेजोनेटर वॉल, सो रेजोनेटर वॉल की अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एच टी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एच स्क्वायर। सो एट द रेजोनेटर वॉल वी हैव दिस रिलेशन, एच टी मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट, सो द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be approximately equal to twice of square of the magnitude of magnetic field intensity। So the square of magnitude of ht is approximately equal to twice of square of magnitude of h। So at the resonator wall we have this relation and here we take the average over the volume। So अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन लोगे तो हमारे पास में ये रिलेशन है। नाउ क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेटर इज दिस वन। सो यहां पर हम इसकी जगह ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एच स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द क्यू फैक्टर फॉर ए कैविटी रेजोनेटर। सो कैविटी रेजोनेटर के लिए क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, Q इक्वल टू ओमेगा आर म्यू वॉल्यूम इंटीग्रेशन एच स्क्वायर dV डिवाइडेड बाय आर एस सरफेस इंटीग्रेशन ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ एच स्क्वायर ds। तो यहां पर हमने इसकी जगह ये रिलेशन रख दिया है। नाउ ये भी मैग्नीट्यूड एच स्क्वायर होगा और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ एच स्क्वायर होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, और ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया। सो Q इक्वल टू ओमेगा आर म्यू इंटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू आर एस इंटू टोटल सरफेस एरिया। सो Q इक्वल टू ओमेगा आर इंटू म्यू इंटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू आर एस इंटू टोटल सरफेस एरिया। सो दिस विल बी आवर Q factor for a cavity resonator। Now for a rectangular cavity resonator, so अगर cavity resonator हमारे पास में rectangular cavity resonator है then U stored equal to half integration 0 to a integration 0 to b integration 0 to c
magnitude of E square dx dy dz. So this will be the value of U stored, क्योंकि रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर का जो हमने डायमेंशन लिया है यहां पर A, B एंड C है, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू A, इंटीग्रेशन 0 टू B, इंटीग्रेशन 0 टू C dx dy dz. So U stored will be this one, or this will be equal to half integration 0 to A, integration 0 to B, integration 0 to C E naught square sin square pi y upon B sin square pi z upon C dx dy dz. So for a rectangular cavity resonator we have magnitude E square equal to E naught square sin square pi y upon B sin square pi z upon C. So U stored हमको रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए ये मिलेगा. अब यहां पर x की टर्म नहीं है, इट मीन्स इंटीग्रेशन 0 टू a dx हमारा a हो जाएगा. नाउ 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. इट मीन्स sin स्क्वायर पाई y अपॉन b will be equal to 1 minus cos 2 pi y upon b whole upon 2 sin square pi z upon c equal to 1 minus cos 2 pi z upon c whole upon 2. So यहां पर हम sin square थीटा इक्वल टू 1 minus cos 2 थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा देते हैं. So U stored equal to half E naught square A integration 0 to B integration 0 to C half 1 minus cos 2 pi y upon B into half 1 minus cos 2 pi z upon C dy dz. So E naught square हमारे लिए कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया. इंटीग्रेशन 0 टू A dx हमारा A हो जाएगा. सो U स्टोर्ड की वैल्यू हमको ये मिलेगी. अब यहां पर ये 1/2 ये 1/2 और ये 1/2 ये तीनों मिलकर 1/8 हो जाएंगे, और साथ में हम इसका और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं. सो U स्टोर्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, सो U stored equal to 1/8 E naught square A B C. So this will be the value of stored energy in a rectangular cavity resonator. That is U stored is equal to 1/8 E naught square A B C. The energy loss is calculated for each of xy, yz, zx plane and is added. So अगर आपको एनर्जी लॉस की वैल्यू निकालनी है देन हम xy प्लेन, yz प्लेन एंड zx प्लेन तीनों के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे. सो यू लॉस हमको क्या मिलेगा, सो यू लॉस इक्वल टू हाफ आर एस ई नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 into 1 upon b square plus 1 by c square. So this will be the average energy loss or U loss equal to this one. So U loss हमको ये मिल गया, U stored हमने ये निकाला है, एंड आपको Q की वैल्यू निकालनी है. So Q इक्वल टू U stored upon U loss, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी यहां पर इंक्लूड कर दी है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैक्टर ओमेगा आर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो Q इक्वल टू यू स्टोर्ड अपॉन यू लॉस. अब यू स्टोर्ड हमारा ये है, यू लॉस हमारा ये है. सो ये वैल्यू यहां पर और ये वैल्यू आप यहां पर रखो. सो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो Q इक्वल टू 1 अपॉन 8 ई नॉट स्क्वायर ए बी सी divided by half r s e naught square pi square upon omega square mu square into ac by b square plus ab by c square plus bc by 2 into 1 by b square plus 1 by c square. Now ये 2 और ये 8, तो ये क्या हो जाएगा 1/4. सो
Q इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RS पाई स्क्वायर, क्योंकि 4 हमको यहां से मिला एंड RS पाई स्क्वायर यहां पर है। सो Q इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RS पाई स्क्वायर, और ई नॉट स्क्वायर से ई नॉट स्क्वायर कैंसिल कर दो, इंटू ABC इंटू AC अपॉन बी स्क्वायर प्लस AB बाई सी स्क्वायर प्लस BC बाई 2 इंटू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर होल पावर -1। तो इसको आपने न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए पावर हमको -1 मिल गई है। सो द Q फैक्टर ऑफ ए rectangular cavity resonator is given by this formula. Now रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर के लिए Q फैक्टर हमने ये निकाला है। अब अगर हम क्यूबिकल कैविटी रेजोनेटर लें तो क्या होगा? सो फॉर ए क्यूबिक रेजोनेटर और फॉर ए क्यूबिकल रेजोनेटर A इक्वल टू B इक्वल टू C। सो इस फॉर्मूले में अगर हम A इक्वल टू B इक्वल टू C करेंगे देन वी विल गेट द Q फैक्टर फॉर ए क्यूबिकल रेजोनेटर। सो अगर आप A इक्वल टू B इक्वल टू C करोगे, सो ये हमारा A स्क्वायर और यहां पर भी A स्क्वायर, सो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, ये 1, ये भी A स्क्वायर ये भी A स्क्वायर, सो ये 1, यहां पर 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 बाई A स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन A स्क्वायर, और बाहर क्या है A स्क्वायर बाई 2, सो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस विल बी 1 एंड होल पावर -1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/3। सो Q इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RS पाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब अपॉन 3, एंड ये 4 और ये 3 मिलकर 1/12 हो जाएगा। सो Q इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12RS पाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Q फैक्टर फॉर ए क्यूबिकल रेजोनेटर। सो Q इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RS पाई स्क्वायर, ये हमारा ए क्यूब हो गया और इसको हमने सॉल्व किया तो 1/3, सो इंटू ए क्यूब इंटू 1/3, और ये 3 और ये 4 मिलकर 12 हो जाएगा। सो Q इक्वल टू 1/12 ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए क्यूब अपॉन RS पाई स्क्वायर, सो दिस विल बी द Q फैक्टर फॉर ए cubical resonator and this is the Q factor for a rectangular cavity resonator. Now here we end our session. In the current lecture we have discussed about Q factor for a cavity resonator. So goodbye.